Known principal ma'am, vice principal sir, and all the teachers. तो ऐसे स्पीच कोई रेडी की नहीं है. I was traveling in the morning, so I passed out from batch 2012. So like 10 साल हो चुके हैं. I think I'm the most senior over here sitting the alumni, and I think काफ़ी कुछ change हो गया है. That used to be at our time. I see lot of infrastructure development. काफ़ी स्कूल अच्छा बन चुका है, बिल्डिंग एंड ऑल, एंड आई नो staff and all are coming, like qualified teachers are there. So अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा because the purpose of this alumni is to pass on the message to you students. So मैं पूरा स्कूल बैठा है. अच्छा. Yeah, so I think students from class 6 to till class 12th, I think all are sitting here. So मेरी तरफ से सबसे बड़ा मैसेज होगा that this is the golden time you guys are getting here, because जो basic education के बाद the foundation education that we call, like from class 6 till class 12th, so you have got, I think, ample of opportunity, because if you go outside in schools, you will realize how difficult it is for मतलब करंट स्टूडेंट्स के लिए. दे हैव टू गो टू ट्यूशन्स एंड ऑल, ट्रैवलिंग करना पड़ता है बहुत, एंड स्टडीज़ आर नॉट दैट इजी. बट हेयर यू आर गेटिंग टाइम, आई थिंक फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक यू आर इन कैंपस. तो आप लोग अच्छे से पढ़ें. एंड फ्यू सजेशंस फ्रॉम माई साइड टू प्रिंसिपल मैम आर like computer education, we should focus more over that, towards that, like extra classes बच्चों को provide किए जाएँ computer education के लिए, because that is the most important in coming times. Everything is going digital, and if students have a good hands-on experience with the computers, so it will help them. मतलब उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा उससे in their future, because everything is IT, everything is digital in nowadays. Second, मेरा सजेशन रहेगा टू मैम इज़ इंग्लिश स्पीकिंग इन द स्कूल, बिकॉज वेन एवर इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, चाहे वो आने वाले समय में हायर एजुकेशन हो, योर जॉब, और वट एवर इन विच एवर फील्ड यू विल बी सर्विंग, इंग्लिश स्पीकिंग will have a key important role in that. So suggestion would be, it should be made mandatory that student English में ही बात करें classes के, at least classes के time, so that it will help them, because English speaking, लिखना पढ़ना सब कर लेते हैं, but when it comes to speaking, बोलने की बात जब आती है, तो everybody struggles in that, especially towards the English speaking. So second message is regarding that one. So we should have English tutors, extra tutors for that, and आजकल courses भी online काफ़ी हैं English speaking के लिए. So although whenever you get time, English newspaper reading, novels, books, start showing your interest in them. So English speaking अपना अच्छा करें, and reading and writing skills will automatically get better. So this was the overall suggestion from my side for like each class, and then comes specifically the students from 11th and 12th class right here. So ma'am, which all are stream here? Arts and okay. So yeah, so I think science and arts students are over here. So as you know, might be pre-boards might be coming, ma'am. Pre-boards हो चुके हैं. हाँ, yeah. Pre-boards में आपको पता चलेगा होगा where you stand, right? And it matters that Navoday's results are always getting better and better every year. That's what I'm seeing. केंद्रीय विद्यालय से भी अच्छे results आने लगे हैं. So keep doing better, and pre-boards में don't get upset if you are not scoring well. I think आपके पास 3 से 4 महीने और हैं, तो अच्छे से तैयारी करें.
because 12th marks are still matter wherever you will get admission and you want to get admission in after 12th से बाद जहाँ भी admission लेना होगा the actually marks matter and even after I would say in post grad also 12th marks are still considered, so don't take it lightly. And science students, art students, whosoever, अच्छे से तैयारी करें. The time that you are getting here will not come back because 10 साल पहले I was also sitting there, मैं भी यहीं बैठा होता था, but at that time we didn't have that much big base of alumni, so there was nobody who can come here and suggest and give us path or guidance. But अभी alumni base काफ़ी अच्छा हो चुका है and काफ़ी alumni are at very good positions at present. So just start networking outside the campus. Whenever you go, you should know that आपके alumni कहाँ पर हैं, so you can take guidance path from them. So and so I think that was all about the speech that I had and the suggestions. So all the best for your future, and just noted that this time will not come again. So ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर दें. And that's it. Thank you. Everyone. आवाज आई नहीं. कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया. यस कैसा लगा स्कूल? बहुत अच्छा तो माय नेम इज पल्लवी शर्मा. मैं 2017 बैच की हूँ और यहाँ पे हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, और मतलब ये पल दोबारा कभी नहीं मिलेंगे तुमको. जितना इसको यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, इंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, सब इक्वल लेके चलो. ऐसा नहीं है कि इंजॉयमेंट में तुम पढ़ाई भूल रहे हो और पढ़ाई में इंजॉय नहीं कर रहे हो, तो दोनों को इक्वल लेके चलो. और दीदी आपसे एक क्वेश्चन है, पूछो. पूछो. आपको किस टीचर से ज्यादा डर लगता था? अब वो है नहीं यहाँ पे. नाम तो होगा, नाम बता दो. मंजीत सर, हमारे केमिस्ट्री टीचर थे वो. उनकी कुछ एक्टिंग करके दिखा सकते हो आप? नो एक्टिंग नहीं आएगी मुझे. आपका नृत्य को कोई फनी इंसिडेंट हो वो बता दो. नृत्य की बहुत यादें होती है, आपको भी कुछ होगी? यादें तो बहुत है. मेमोरी तो 12th क्लास में होता है ना कि जब सबकी क्रिसमस हॉलीडेज होती हैं तो +2 क्लास की नहीं होती, वो यहीं रहते हैं. अच्छा 10th की भी नहीं होती. हमारे टाइम में सिर्फ +2 क्लास रहती थी यहाँ पे. तो तब की बात है, उस टाइम रात को जैसे तब तो सिर्फ 12th क्लास होती थी तो मूवी के लिए अलो कर देते थे सिर्फ रात को गर्ल्स को. तो तब एक बार मैं यहाँ थैंक यू मैम, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू प्रिंसिपल मैम, सतीश सर. सच एन ऑनर टू कम बैक हेयर. तो जैसे आज नाम अनाउंस हुआ ना मेरा, मुझे एक बात याद आ गई. एक बार सुबह सुबह ऐसी धुंध हो रही थी, जैसे आज सुबह सुबह धुंध हो रही थी ना, तो असेंबली हुई सब है, तो सतीश सर ने नाम लिया कि जॉनी स्टेज पे आ जाओ. इसी स्टेज पे की बात है, तो मेरा नाम हुआ. ठीक है. अभी पता नहीं सुबह सुबह नींद से उठ के आए कि पता नहीं क्या होगा, कुछ इनाम ही मिलेगा. फिर रोहित एसडीओ बैठा था, रोहित
उसका नाम अनाउंस हुआ। तो एक साहिल और एक गुरप्रीत, हम 4 लोग थे। सर ने बुलाया कि यहाँ आ जाओ, इधर बात करनी है तुमसे। आए सर वहाँ से, बहुत तोड़ा भाई, बहुत मारा। ऐसे बताया ही नहीं क्यों मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारा सुबह सुबह। तो खैर कोई शरारत करी थी तो मारा था इसलिए। और मुझे ये भी याद है कि यहीं पे ऐसे ही धूप होती थी और यहीं पे हमारी सुपरवाइज स्टडी लग रही होती थी। यहीं बैठ के मैं पढ़ रहा होता था बायो, जहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। यहीं बैठ के मैम यहाँ पे क्लास ले रही होती थी, संडे का टाइम होता था मेरा। वहाँ से एक्चुअली डॉक्टर बनने का मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। मुझे बायो बहुत पसंद थी, मुझे बायो पढ़ना। जैसे जेनेटिक्स आती है ना 9th में, किसी को इंटरेस्ट हो तो नहीं है। तो एक्चुअली मेरा कोई सपना नहीं था कि डॉक्टर बनूँ मैं, मुझे बस बायो पढ़नी अच्छी लगती थी। तो ऐसे शुरू होता। फिर 10th के बाद मैम ने गाइड किया कि नीट की तैयारी करो, नीट की डॉक्टर भी बनते हैं आगे, बायो अच्छी है तुम्हारी। तो उसके बाद पता चला कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। मैं 11th-12th के जो बच्चे बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा करो, 11th-12th में कौन है भी हैं? 11th-12th के कौन बच्चे हैं? तुम सब ध्यान से सुन लो। यहाँ से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन, तो अभी तैयार हो जाओ। तुमने तो बहुत मस्ती कर ही ली है, तो तुम पढ़ लो। और कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि तुम्हें पास होना है, सिर्फ इतने नंबर आ गए इधर उधर से देख के कर लिया। एक नंबर बहुत मैटर करता है, एक नंबर से सीट रह जाती है। तो अगर तुम्हें, और कौन 9th-10th में कौन है अभी? अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे हैं। और कौन लेना चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मुझे बायो पढ़नी है? हाथ खड़ा करो। हाँ, काफ़ी बच्चे हैं, मतलब काफ़ी बच्चे हैं। हाँ। कोई अच्छा बताएगा, कोई क्यों बनना चाहता है कोई डॉक्टर है? कोई खड़ा हो गया, कोई एक आंसर देगा कोई? क्या मतलब कि क्या पर्पस है, क्यों चाहते हैं वैसे हैं? कोई भी एक बच्चा तो इंटरेस्ट है ना। जो जिसको सही में इंटरेस्ट हो वही लेना बायो, क्योंकि बहुत लेंथी करियर है। अभी तक पढ़ रहा हूँ, अभी भी एक तैयारी कर रहा हूँ, एक एग्ज़ाम की MD की तैयारी कर रहा हूँ। MBBS मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिसको सही में इंटरेस्ट हो, जिसको बहुत लेंथी आवर्स काम करने में इंटरेस्ट हो, जिसको बायो से लगाव हो, प्यार हो। मुझे बायो से बहुत लगाव था, इसलिए मैं शायद अभी तक यहाँ पहुँच गया, अभी तक पढ़ रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ। तो जिसको सही में हो इंटरेस्ट, और कभी भी किसी को गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैं अपना नंबर दे जाऊँगा, मैम से ले लेना किसी को चाहिए हो तो। इसके बाद 12th के बाद, उसके बाद किसी को, तो कभी भी आप कॉल करिए, ठीक है? कुछ सवाल पूछ रहे थे सर? कोई आपसे क्वेश्चन है, आप सबसे ज़्यादा मस्ती किस टाइम करते थे? मस्ती 10th क्लास में हवा लग जाती है कि वो पता नहीं क्या हो गया। कोई इंसिडेंस? अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा ना किससे डर लगता था, किसी ने सतीश सर का नाम ही नहीं लिया। अरे भाई, सतीश सर का इतना खौफ था ना, मैं बता देता हूँ। अभी भी है मैं बताता हूँ सतीश सर का क्या खौफ था। यहाँ कोई भी खड़ा हो ना, शाम को 3-4 बच्चे खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बस खाना खा के ऐसे थोड़ी देर खड़े हो, बात करने लगे, और वहाँ से जो सतीश सर आ रहे हैं, ओ भक्के भाई, हॉस्पिटल में घुस जाओ, सब पता नहीं कुछ मार ही पड़ जाएगी, कहाँ से क्या हो जाएगा भक्के अंदर। और किस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी थी? अंजू मैम ने कभी नहीं डांटा मेरा। अंजू मैम ने मेरे को बहुत प्यार से रखा है, आज भी मैं मैम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हमेशा मैम ने ही कॉल किया, एक्चुअली मैं बिजी था, मैम ने ही कॉल किया कि तुम्हें आना है, तो मैं इसीलिए आज आया हूँ। एंड वेरी थैंक्स टू अंजू मैम। प्लीज़, उन्होंने ही जो फाउंडेशन जो मेरी बनाई, मेरे करियर की जो फाउंडेशन बनी, यहीं पे बनी, और वो अंजू मैम की वजह से। थैंक यू सो मच। हेलो तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल सर, और मेरे सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, और सभी स्टूडेंट,
सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आप सबको मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं मतलब JNU अम्बाला में 2008 से 2013 तक पढ़ा। मतलब 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद जो है 10th क्लास में मुझे जो है दक्षिणा का टेस्ट देने का एक मौका मिला। हालांकि मतलब ऐसा ही होता है, एक ट्रेंड में है कि मतलब दक्षिणा जो है 10th क्लास में एक एग्ज़ाम लेती है, दक्षिणा फाउंडेशन। तो उस एग्ज़ाम में मेरे को पीर होने का मौका मिला 10th क्लास में। मैं मतलब मेरा एग्ज़ाम कहाँ JNU करनाल में था, मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया। तो अच्छे स्कोर के बेसिस पे मेरा आगे सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बेसिस पे मेरे को 2 साल कोटा में IIT की कोचिंग मिली और 2 साल मैंने वहाँ पे कोचिंग ली दक्षिणा फाउंडेशन में। दक्षिणा फाउंडेशन बेसिकली क्या है ना कि जो स्टूडेंट स्टडी में अच्छे रहते हैं 6th क्लास से, तो दक्षिणा फाउंडेशन बेसिकली उन पर एक नज़र रखती है कि भाई ये पढ़ रहा है बच्चा, अच्छा है पढ़ने में। तो उनका ना वो जब वो 10th क्लास में होते हैं तो उनका नाम भेज देती है कि हम इसको मतलब इससे एक टेस्ट लेना चाहते हैं, और अगर ये टेस्ट क्लियर कर देता है तो हम उसके बेसिस पे इसको फिर आगे 2 साल के लिए IIT JEE की कोचिंग फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली मैंने 10th में एग्ज़ाम दिया और 11th 12th में फिर मैंने जो है JNU बूंदी से कोचिंग ली और अच्छे स्कोर के बेसिस पे मेरे को उसके बाद जो है IIT गुवाहाटी में एडमिशन मिला। IIT गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। काफ़ी अच्छा रहा, मतलब टीचर का काफ़ी सहयोग रहा, अच्छी गाइडेंस रही। तो उसके मतलब उस गाइडेंस के बलबूते पे ही मतलब आगे चांस मिला पढ़ने का। फिर उसके बाद जो है मैंने जब मैं कॉलेज के 4th ईयर में था, मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। गेट का एग्ज़ाम होता है बेसिकली ये बेसिकली या उसके लिए होता है कि अगर आप मान लो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब करना चाहते हैं या आगे MTech परस्यू करना चाहते हैं IIT से, तो गेट के बेसिस पे बेसिकली ये होता है। तो मैंने गेट का एग्ज़ाम किया, उसमें भी अच्छा स्कोर था। हालांकि मैं MTech का तो मेरा कोई इरादा नहीं था आगे पढ़ने का, तो मेरे को हरियाणा विद्युत प्रसारण में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर जॉब मिल गई और मैं 2 साल से यहीं पे पोस्टेड हूँ अम्बाला सिटी में ही, अपने लोकल अम्बाला सिटी में ही। तो मैं सभी टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन सबके पीछे जो उनकी गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस में ही, इनकी प्रॉपर गाइडेंस से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात याद आ जाती है ना नवोदय की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं JNU बूंदी में था 11th में, शुरू में गया ही था ना, तो थोड़ा सा मेरा क्या है ना, मैं शुरू से थोड़ा सा ना आलसी रहा हूँ ना कि लेट उठा है ना, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी मार भी पड़ी है ना, यहाँ पे भी पड़ी है। रिमीडियल कई बार मिस हो जाती थी मेरी, है ना, तो काफ़ी डांट भी पड़ी है उसके चलते टीचर से। तो मैं 11th क्लास में JNU बूंदी में नया गया था, नया माहौल था वहाँ पे, नया एनवायरनमेंट था। तो वहाँ पे क्या था ना, बेसिकली जो PT सुबह की मॉर्निंग PT होती है ना, वो हमारे प्रिंसिपल सर ही कराते थे हमारे वहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर ही कराते थे। तो पहले दिन आए वो, उन्होंने उठाया, सबको उठा के चले गए। अब मैं थोड़ा सा था मतलब कैजुअली ले लेना चीज़ों को, उठा के चले गए। उठाने के बाद मैं फिर सो गया ना जी, सर्दियों का टाइम था, मैं फिर सो गया। वो 10 मिनट बाद आए, वो क्या हुआ कि मेरे ऊपर ही चढ़ गया ना, वो मेरे लाते मारने लगे। तो ये था ना, फिर थोड़ा मतलब ये एक इंसिडेंट था जो मेरे को मतलब लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी रही ना JNU की लाइफ, JNU में 7 साल बिताए, बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा टाइम था ना। तो बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मेरे से इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो पूछ सकते हो आप, यू आर फ्री, यू कैन आस्क। किसी को कोई मतलब पूछना नहीं आता, इंजीनियरिंग पसंद ही नहीं है क्या किसी को? इंजीनियरिंग किसी को पसंद ही नहीं है क्या? जब आप 10 साल बाद यहाँ आ रहे हो तो आपको बहुत सारे टीचर हैं, वो बदले हुए दिखे होंगे और स्कूल का जो माहौल है वो भी बदला हुआ दिखा होगा। तो जो आपके समय का माहौल था, टीचर्स थे, वो कैसे थे और माहौल कैसा था? उस टाइम भी देखो काफ़ी अच्छा
अच्छा माहौल है ना, मतलब माहौल अच्छा था पढ़ाई में भी। सब टीचर जो है ना बच्चों की एक एजुकेशन पे फोकस रहते थे, हर एक्टिविटी में ध्यान देते टीचर की, बच्चा हर तरह से निपुण रहे। और मतलब यहाँ के टीचर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है ना, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं ना। और अभी भी जो है काफ़ी अच्छे हैं। मंजीत सर हो गए, फिजिक्स वाले सर थे सुनील सर काफ़ी अच्छे हैं ना। सॉरी, हॉस्टल मेमोरीज में मैच देखने जाता हूँ, ऐसे ही मैच देखने भाग जाता हूँ रात में, है ना। मैच क्रिकेट का बड़ा शौकीन था मैं, हालांकि ये बताना तो नहीं चाहिए, मतलब छुप छुप के देखता था मैं बट ठीक है, उधर रहते थे, मतलब वो कंस्ट्रक्शन काम करते थे, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, छुप छुप के पीछे से उनके टीवी में रात में मैच देखने जाता था। मतलब मेरे को ऐसा होता था कि एक शॉट और एक विकेट ना मिस हो जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए उसके अलावा ऐसा रहता था। हाउस में उदयगिरी था, उदयगिरी हाउस से मैं बिलोंग करता था। और आप सबसे ज़्यादा करीब किस टीचर के थे? सबसे ज़्यादा करीब मैं सतीश सर की रहा हूँ वैसे तो क्योंकि सतीश सर जो है थोड़ा डांटते भी थे लेकिन प्यार से समझाते भी थे, ऐसा है दोनों क्वालिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे महोदय, विद्यालय के प्राचार्य उपाचार्य समस्त स्टाफ, मेरे से जूनियर जो आज इस एलुमनाई का हिस्सा हैं, और प्यारे बच्चों, मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि इस मंच पे मैक्सिमम कामयाब लोगों की अक्सर चर्चा होती है, सफलताओं की चर्चाएं अक्सर होती हैं, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। कामयाब होने के लिए नाकामयाबियों का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आज आपके बीच में आपके विद्यालय से निकले हुए सीनियर्स भाई बहन आए हैं, वो आपका अपनी कामयाबी का दौर साझा कर रहे हैं। 1994 में मैं नवोदय से पास आउट हुआ हूँ। शायद बहुतों का तो जो अब आगे बैठे हैं उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये कि कड़वी सच्चाई है, आप अपने जिला के प्रांत के बहुत ही भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ के हर क्षण हर पल का भरपूर आनंद लें, उससे सीखें। नवोदय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इतने भाग्यशाली हैं कि उनको 24 घंटे पढ़ाने वाले अध्यापक मौजूद रहते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए आजकल कोचिंग के नाम पर खर्च करते हैं, और आपको वही कोचिंग यहाँ मुफ्त में उपलब्ध होती है। आप दिन रात कभी भी आपको कोई समस्या, आपके सीनियर्स हैं, आपके सहपाठी हैं, कुछ समझ नहीं आता, बहुत सी समस्याएं तो सहपाठियों से ही हल हो जाती हैं। उसके बाद में भी कुछ समस्याएं बचती हैं तो 24 घंटे अध्यापक होते हैं ना। अब ये हिम्मत आपकी है कि आप उनका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। कभी भी किसी भी टाइम, क्लास टाइम के बाद आप उनसे कुछ भी पूछो, बचाने को तैयार रहते हैं, लेकिन कमी कहाँ रहती है? हमारी अपनी कमी रहती है। तो आज से ही आप प्रण कर लो, आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार नहीं समझ में आए, आप बार बार अपने टीचर से पूछो, वो आपको बताएंगे। इसमें कभी भी शर्म महसूस न करें कि मेरे भैया ने, मेरी दीदी ने 2 बार पूछा, उसे 2 बार में समझ में आ गया और मेरे को 10 बार में नहीं। आपको कभी भी इस बात से घबराना नहीं है। आपके बीच में कामयाब लोग हैं,
इस एलुमनाई का मकसद जो है ये लगभग सभी नवोदय में की जा रही है। गुड़िया हिंदी समझ नहीं आ रही क्या? मतलब मराठी आए थे, मराठीला सांगून तुला, मतलब मुझे मराठी भी आती है, मैं आप कहूँ तो मराठी में बोलूँ, तो थोड़ा सुन लो। अगर मज़ा नहीं आ रहा ना तो बीच में ऐसे ही ताड़ी बजा दो, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। तो इसका मेन मकसद जो है ना सभी नवोदय विद्यालय में मिलने का यही है कि जो छात्र आगे निकल गए हैं उनसे आप उनका भरपूर फायदा उठाएं। आपको यहाँ बैठ के जाना नहीं है। अभी डॉक्टर जोनी रोहित एसडीओ साहब आपके बीच में आए। डॉक्टर जोनी ने आपको खुला आमंत्रण दिया कि जो भी बच्चा एमबीबीएस मेडिकल लाइन में जाना चाहता है और उसे मार्गदर्शन की गाइडलाइंस की ज़रूरत है तो वो पूछ सकता है। उन्होंने मतलब फ़ोन पे बात करने की भी आपको इजाज़त दी है मैडम के माध्यम से नंबर लेके। अभी जब आप जाएंगे खाने की जल्दी ना करें, क्योंकि शायद साल के बाद ये मौका दोबारा आएगा और उस टाइम हो सकता है ऐसे लोग किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण आपके बीच में आ पाए, खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। सौभाग्य है कि दोनों ही लाइन से डॉक्टर जोनी और रोहित जी आपके बीच में, आप एकांत में भी उनसे अगर यहाँ स्टेज पर कोई मतलब शर्म महसूस कर रहा है तो पूछ लें। जो टीचर हमें डांटते हैं ना, ये हमें स्कूल से बाहर जाने के बाद पता लगता है कि उनकी डांट में भी प्यार होता है और हमारा फायदा होता है। एक मौके पे तो हमें लगता है कि पीटी सर ने डांट दिया, प्रिंसिपल सर ने डांट दिया, 2-4 दिन हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब आप इस परिसर को छोड़ के चले जाएंगे ना, जब आपको पता लगेगा कि वो हमारे फायदे के लिए डांटा जा रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि आपके बीच में और भी बहुत खूब लोग हैं। लेकिन मैं एलुमनाई से ये ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ सिर्फ हाजिरी लगा कर न जाएं। इसके बीच में आप इकट्ठा होके एक, अभी ये विद्यालय ने आयोजन किया, ये तो करेगा ही, लेकिन आप अपने स्तर पर भी एक छोटा संगठन, कोई वेलफेयर संगठन ऐसा बनाएं और इस लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करें जो आपके, देखिए जो सफल लोग हैं ना अपने बैच के, हम उनके साथ तो कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन एक परिवार था हमारा नवोदय, हमारे बैच से हमारे जूनियर सीनियर्स किन्हीं कारणों से या तो ये वक्त का फ़ायदा नहीं उठा पाए। देखिए यहाँ आने हुए सभी बच्चे तो बराबर हैं, क्योंकि सभी ने एक ही तरह का टेस्ट पास किया है, एक ही पेपर दिया, उसको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करके हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से हम यहाँ का पूरा फायदा नहीं उठा पाए, या यहाँ से आने बाहर जाने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं आई जिन्हें हमारा परिवार झेल नहीं पाया या हमारा सहयोग नहीं कर पाया मजबूरियों के कारण, तो हम आगे जा सकते थे लेकिन पीछे रह गए। तो एलुमनाई जो सामने बैठे हैं उनसे एक मेरी गुजारिश रहेगी, यदि आप ऐसा कर पाएँ, जो आपके सहपाठी, आपके जूनियर सीनियर्स, आप सभी को पता होता है साथ पढ़ने वाले को कौन कितने पानी में, कि वो कुछ कर सकता था या अब भी कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ समस्याएं हैं, तो उन असफल लोगों को भी आप ढूंढने का प्रयत्न करें जो सफल हो सकते हैं और जितनी मदद हो सके हम उनकी करें, ये मेरी विशेष गुजारिश रहेगी। और आप बच्चों का, विशेष तौर पर मंच संचालन कर रहे लोगों का और प्राचार्य महोदय, स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे वक्त दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमन मोर जो मेरा बेटा है वो भी आपके विद्यालय का छात्र रहा है और अभी 10 दिसंबर को वो कमीशन हो गया एज ए लेफ्टिनेंट आर्मी में इंजीनियर्स। कुछ व्यवस्थाओं के कारण उसका आने का बड़ा मन था लेकिन वो नहीं आ पाया। उम्मीद करेंगे कि भविष्य में वो आपके बीच हाजिर होगा। मेरी बेटी प्रियंका भी यहीं से पास आउट है, 2021 में वो आपके बीच में है। तो यदि कुछ शब्द मुझसे जाने अनजाने में इस दौरान ऐसा निकल गया हो जो
किसी को अच्छा ना लगा हो तो क्षमा चाहूँगा। पुनः धन्यवाद सभी का, सभी मिल गए। नमस्कार, मैं आपके साथ यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नवोदय विद्यालय समिति का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। क्या है, अगर हमारी नवोदय विद्यालय समिति यहाँ ना होती तो हम भी यहाँ ना होते। और हमारे अध्यापक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैं सभी को सादर नमन करता हूँ। हमारी लाइफ में बहुत सारे फेज आते हैं। सबसे पहले क्या है, हम स्कूल में एंट्री करते हैं, हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। उस कंपटीशन एग्ज़ाम होने के बाद हम क्या है, नवोदय में एंटर करते हैं। एंटर करने के दौरान और उसके बाद में हमारे पास क्या होता है कि 1000 लोगों के या 40 लोग हैं या 80 हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन होता है। पर जब हम 10th या +2 पास करके जाते हैं तब हमारे पास वो कंपटीशन हज़ारों में हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ में आपको जो हमारे आने वाला भविष्य है उसकी तैयारी भी हमें साथ में लेके चलनी है। अभी हमारे यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं वो हमारे माता पिता समान हैं और वो हमें हर एक मूलभूत सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड कराने के साथ साथ वो, जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो आपका जो भी आपकी समस्या है वो आप बार बार पूछ सकते हो। अभी मैं यहाँ से 10th पास करके गया, उस टाइम था कि हमें इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग 10th पास करने के बाद क्या हुआ कि कोई भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए +2 करनी ज़रूरी होती है, पर किसी फाइनेंशियल बैकअप ना होने के कारण वो मैं इंजीनियरिंग ना करके मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के साथ साथ में मैं अपनी जो हमारे पास में कोई जैसे खराद मशीन होती है या लेथ मशीन होती है वो हमारे घर में लगी भी हुई थी, तो मैं दिन में वहाँ पे जाता था और रात में मैं वहाँ पे जाके काम करता था। रात के 8 भी बजते थे, 9 भी बजते थे, कई बार 12 भी बज जाते थे। तो हमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, हम भी यहाँ पे आए हैं, पहले आए थे, सबके पास क्या है, सुविधाएं नहीं होती हैं। वो सुविधाएं हमें खुद बनानी पड़ती हैं। हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक हमारा साथ दे सकते हैं, पर उन अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमें खुद क्रिएट करनी होती है। और अपॉर्चुनिटी हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हम उसमें मन लगाएंगे। अभी क्या होता है कि जैसे हमारे जोनी हैं और रोहित जी हैं जो आज SDO हैं, जोनी आज आगे भविष्य में आने वाले डॉक्टर हैं। अगर मैं इनकी बात बताऊं कि जिस टाइम ये पढ़ते थे ये टाइम नहीं देखते थे, मैं इनके साथ रहा हूँ, ये टाइम नहीं देखते थे, खाना नहीं देखते थे, तभी वो आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप मेहनत करिए, पढ़िए और अपने माँ बाप, अपने टीचर और अपनी जो नवोदय विद्यालय संस्था है उसका आप नाम गौरव कीजिए। और आपको आगे आने वाले टाइम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आने वाले टाइम में मैं बता दूं, शायद आपको सभी को नहीं पता हो कि जो नवोदय विद्यालय समिति है आने वाले बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आने वाली है। क्या है, हमें पता है, हम जाते भी रहते हैं और हर जगह मिलते भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, आज बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, पर उसके लिए आपको भी कुछ करके दिखाना होगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। मंत्र क्या है? मेरी सफलता का मंत्र है, सबसे पहले तो आप मेहनत कीजिए। क्या है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे मेहनत करेंगे तब जाके आपको अपर लेवल पे मेहनत वो उसका जो फल मिलेगा। अगर आप मेहनत कम करते हैं तो उस हिसाब से फल मिलेगा। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलना ही मिलना है। और आपके माइंड में आइडिया मतलब कैसे आया कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? देखिए क्या है, जो ये आइडिया क्या होता है, जब आप किसी भी फील्ड में एंटर करते हैं तो उस एंटर करने के बाद आपको सोचना होता है कि मेरे को नौकरी ही करनी है, क्या मेरे को उसमें आगे बढ़ना है।
अब अगर हम अपनी जो सोच है वो नौकरी तक सीमित रखेंगे तो हम नौकरी ही करते रहेंगे। अगर हम आगे बिजनेस तक उसको सीमित करेंगे तो हम बिजनेस में आगे जा सकते हैं। आपका ऐसा एम नहीं था कि मुझे इंजीनियर बनना नहीं, है? मेरा ऐसा कोई एम नहीं था। मेरा क्या है कि आगे आगे अपॉर्चुनिटी मिलती गई और उसको मैं भरपूर तरीके से निभाता गया। थैंक यू। भूख तो नहीं लग रही? ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई कि सीनियर्स आ गए हैं, बोर कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि जेन्युइनली जब हमारा टाइम था और ऐसे फंक्शंस होते थे ना, हम भी वॉच की तरफ देखते थे कि लंच टाइम हो रहा है और हमें लेट हो रहा है, क्योंकि मेन्यूज हमारे सबके दिमाग में होते थे। आज सोमवार है, कढ़ी चावल बनेंगे, जल्दी से जाना है और खाना खाना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मेरा नाम नंदिनी है, मैं ऑल्ट्रोस टेक्नोलॉजीज़ में MIS हेड की पोस्ट पे हूँ। और यहाँ नवोदय में हमारी बहुत सारी यादें हैं। जब हम 6th में आए थे हम बहुत रोते थे। हर संडे जब भी पेरेंट्स आते थे हम बोलते थे हमें टीसी लेना है, घर ले चलो। पर जब जाने का टाइम आया ना, हम सोचते थे कि काश नवोदय का एक कॉलेज होता, इंस्टीट्यूट होता, आगे से आगे चीज़ें होती और हम कभी यहाँ से बाहर ही ना जाते। तो नवोदय के मोमेंट्स पहले आपको बहुत बोर लगते हैं या स्ट्रिक्ट लगते हैं कि सुबह उठ के पीटी करनी है, हर एक टाइम बना हुआ है हर चीज़ का, पर बाद में ये चीज़ें आप बहुत मिस करते हो। जब हम कॉलेज के बाद जॉब से पहले का जो पीरियड होता है ना, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तब हम ये टाइम टेबल मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि नवोदय था, एक टाइम टेबल सेट था, सुबह उठना था, खाना टाइम पे मिलना था। अब कोई टाइम टेबल नहीं है, तो ये चीज़ें हमें बहुत याद आती हैं। और जैसे रिमीडियल स्टडीज़ होती होगी आप लोगों की, हम रिमीडियल की अटेंडेंस लेने जाते थे तो मैथ्स के टीचर थे राकेश सर। मैं उनसे पर्सनली बहुत डरती थी, क्योंकि जब भी मैं अटेंडेंस लेने जाती थी, किसी क्लास में वो पढ़ा रहे होते थे तो वो क्वेश्चंस पूछने लग जाते थे कि वेरिएबल्स बताओ, कांस्टेंट बताओ। तो इसलिए हम लोगों की ड्यूटीज होती थी अटेंडेंस लेने की, कि आज अटेंडेंस लेने कौन जाएगा। हम पहले कंफर्म करते थे कि आज रिमीडियल स्टडी में किसी भी क्लास में उनका लेक्चर तो नहीं है, वरना हम किसी और को ड्यूटी दे देते थे। और बॉयज़ की बहुत सारी मेमोरीज थी। गौरव भैया हैं हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो अब आर्मी में है, बहुत प्राउड होता है मुझे उन पर। ये लोग जब यहाँ पे थे क्लस्टर्स में, इन लोगों ने हमारे हॉस्टल का, मतलब हमारे JNV अम्बाला का बहुत नाम रोशन करा है। गौरव भैया, विशाल भैया और मुझे नाम याद नहीं है। तो क्लस्टर में हमारे JNV अम्बाला को जो भी प्राइजेस मिलते थे सारे, मतलब इनको क्रेडिट जाता है, राहुल चावला को जाता है, जो फुटबॉल में हमारे क्लस्टर्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। माहौल अब काफ़ी बदल गया है। हमारे टाइम में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती थी, टीचर्स भी अब थोड़े आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्टनेस होती होगी, मतलब हमारे टाइम में भी टीचर्स बहुत अच्छे थे। अब काफ़ी टीचर्स बदल गए हैं, हम ज़्यादा टीचर्स को जानते नहीं हैं क्योंकि सबका ट्रांसफ़र हो गया है, पर जो भी जिन्हें भी जानते हैं वो हमारे लिए बेस्ट टीचर्स थे। यहाँ पे जो हमने स्टडी करी है वो किसी और स्कूल में कभी नहीं मिल सकती थी हमें। हमारे बेसिक इतने अच्छे से क्लियर हो रखे हैं, और स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं। 6th के बच्चों को भी बहुत कम चीज़ें आती है। यहाँ पे आप लोगों की नॉलेज जो है ओवरऑल अम्बाला में किसी भी स्कूल से सबसे बेस्ट नॉलेज यहाँ पे आपको दी जाती है। तो बस मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ज़्यादा आप लोगों का। थैंक यू। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ जी। कि जैसे कि नवोदय में रह के हर किसी बच्चे की कोई ना कोई हॉबी होती है, कि क्या तो म्यूजिक या फिर गेम, तो आपकी क्या हॉबी थी? हमारी हॉबी थी सिंगिंग और योगा करती थी मैं, तो योगा। तो कोई गाना सुनाओगे? एक सेकंड पहले सुनो। हॉबी होना और आप उस चीज़ में अच्छे होना दो डिफरेंट बात होती है। मुझे आतिफ असलम सुनना पसंद है, पर मैं आतिफ असलम जितनी अच्छी गायक या नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार टीचर्स और मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स सभी को, और थैंक यू ये मंच देने के लिए। मेरी ये नर्वसनेस अभी भी नहीं जा रही, 7 साल हो गए मुझे, तो अभी भी लग रहा है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा कुछ।
सिमिलर है, सेम टू सेम। उस टाइम भी यही, कभी कुछ बोलने को कह देते, सुबह बोलते हैं ना प्लेज वगैरह या कुछ, ज़ीरो, उसमें ज़ीरो। पर एक चीज़ अच्छी थी आपके अंदर, एक क्वालिटी ज़रूर है जो आप झांकिए देखिए, हाथ अभी भी काँप रहे हैं। एक क्वालिटी अच्छी है, जैसे मैं था तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे हर गेम अच्छी लगती है और खेलता हुआ हर कोई अच्छा लगता है, चाहे मैं ना खेल रहा हूँ अगर कोई और खेल रहा है तो मुझे अच्छा लगता था। तो शायद वही रहा होगा और यहाँ का डिसिप्लिन वो था जो मुझे फौज तक ले गया। और सपना तो यह था कि देश के लिए खेलूँ फुटबॉल, पर वो नहीं पूरा हो पाया। तो ठीक है, आप अपने पैशन को लेके चलिए। मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपका दिमाग खोल देती है कि आपने क्या करना है, आपका इंटरेस्ट जाग जाता है, मतलब आपको ये इतने आप समझदार हो जाते हैं कि आपको करना क्या आगे, है ना। तो इसलिए एजुकेशन चाहिए, और जो करना चाहता है अपने पैशन पे ज़रूर काम करे। मेरे साथ विक्रम है, वो अभी थिएटर कर रहा है, उसने 12th के बाद जाना कि वो थिएटर के लिए बना हुआ है ना। और वो कितनी अच्छी बात है, अगर वो शेयर करे यहाँ कि मैं तो ये चाहता हूँ करे। एक बहुत ही अलग चीज़ है कि आप अपने पैशन को लेके चलिए। आज बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। और थैंक यू, इतना ही है। क्योंकि आपने किस टाइम ये चीज़ ज़्यादा फेस की थी, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा, मतलब अपनी पोस्ट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड? कुछ नहीं, ये नेचुरल हो जाता है स्ट्रगल, कुछ नहीं, बस आप चलते रहिए और अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। स्ट्रगल तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और कुछ नहीं है। ओके, और कोई यहाँ की आपकी मतलब स्वीट या मेमोरी कोई अच्छी सी? यहाँ की तो भर की मेमोरियाँ हैं, मेमोरियाँ हैं। कोई एक शेयर करना चाहेंगे? बस ठीक है, कुछ नहीं है, बस मेरा मन ये करता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ और कुछ नहीं, यही है। थैंक यू। Respected principal ma'am, respected principal ma'am, teachers and my dear friends, कैसे हैं आप सभी? ओह ठीक है। अब मेरा यहाँ आने का मेन मोटिव यही था कि जब तक मैं 12th में रहा ना, एक चीज़ की बहुत मतलब मुझे क्या कमी लगी उस वक्त के, मतलब जो हमारा टाइम पीरियड था, थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटीज़ में ना स्कूल पीछे था। मुझे ऐसा लगा कि कल्चरल एक्टिविटीज़ पे यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बजाय कि जो एकेडमिक्स थी यहाँ की, एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। आप लोग यहाँ से बाहर भी जाओगे ना, आप लोग देखना कि आप लोग जो बाहर 80 परसेंटाइल लेके पास आउट हुए हो, उनसे ज़्यादा कॉमन सेंस और IQ लेवल आप लोगों का होगा। सही में बिल्कुल जांची हुई बात है। आप सभी वहां जाओगे और ऐसे मतलब 3-4 लोगों का जब आपका ग्रुप बनेगा ना, आप ऐसे खड़े होगे, तो क्या बातें कर रहे हैं यार, ये नहीं पाओगे कभी। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, मतलब IQ लेवल आपका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कई बार आप लोगों में कहाँ कमी आएगी, जो मेरे अंदर भी आई, वो है कॉन्फिडेंस। हम लोगों का कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता था जब मैं यहाँ पे था। मैं प्लेज बोला करता था यहाँ पे, ये सब है ना, जो सुबह की ड्यूटीज थी, हम लोग बचते थे, अपने कैप्टन को कहते थे, सर भैया मैं आपको पराठा दे दूंगा, मतलब यहीं से ही हम खरीदते थे, भैया पूरी दे दूंगा तो प्लीज मेरी प्लेज मत लगाना भैया, मतलब ऐसे होता था। लेकिन फिर भी भैया को थोड़ी बहुत पर्सनल दुश्मनी, चलना चल तो थोड़ा सा होता था। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, आप सब मलाई हो अपने अपने जिले की, यहाँ पे जो हो, लेकिन बस ये मत करना कि अपने आप भविष्य थोड़ा सा कि किसी के पीयर प्रेशर में आके या मतलब ऐसे ही जल्दबाजी में, क्योंकि हम लोग ना 6ठी से लेके 10वीं 10th के बाद हमारा थोड़ा सा बनना स्टार्ट होता है। 10th तक तो आप बेसिक नॉलेज ले रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। 10th के बाद आप थोड़ा अपने अपने करियर के तरफ चलोगे। हमारे टाइम में करियर हम कैसे, हमें इतना मतलब दिमाग खुला नहीं था, ना इतनी किसी की गाइडेंस थी, तो हम लोग ऐसे चुन रहे थे। हमारे क्लास का हाल था, भाई तेरी क्लास में बेंच खाली पड़े हैं क्या? आर्ट वाला पूछ रहा है मेरे से, भाई तेरे क्लास में बेंच खाली है? मैं कहा हाँ। कह रहे फिर मैं उस क्लास में बैठ जाता हूँ। वो आर्ट से नॉन मेडिकल में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कैसे भी। अच्छा तू क्या बोल रहा? अच्छा एक बंदे ऐसे ही वहाँ करनाल जा रही थी गाड़ी आर्ट्स की, उसको लगा यार गाड़ी में घूमना है, वो करनाल चला गया आर्ट्स लेके, मतलब कुछ वो नहीं था। लेकिन आप लोग सही में, लकड़ी के अंदर आग पहले ही होती है,
जब उसे इग्नाइट किया जाता है ना चिंगारी से, तब उसके अंदर आग जलती है। वैसे ही आप लोगों के अंदर ना टैलेंट बहुत छिपा हुआ है, लेकिन एक चीज है इग्नाइट की, जब आपको ट्रिगर मिलेगा, कुछ चिंगारी मिलेगी। आप सब लोग जरूरी नहीं है कि हमने पढ़ के, मैं IIT NIT ये सब चीजें जरूरी नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, बहुत चीजें हैं। बाहर जाओगे लोग बहुत चीजें कर रहे हैं, कोई माइम कर रहा है, कोई थिएटर कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। जो अच्छा है पढ़ाई में अपने आप को, मतलब ठीक है, जो अच्छा है पढ़ाई में क्या कर सकते हैं। जिसका नहीं दिमाग चलता तो क्या करेगा, जिसका चल ही रहा है दिमाग वो यही देख रहा है टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर लिख रहा है। हम लोग टीचर को ही देखते रहते थे। मैं तो टीचर ऐसे खड़ा आता था वो जो, हाँ मतलब टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, टीचर कैसे वो कर रहा है उस पर ध्यान है। तो आप लोग मतलब ये चीज बिल्कुल मत करना। अगर किसी का एक्टिंग में इंटरेस्ट है या किसी का नाचने गाने में, मैं अभी देख रहा था ये तो बहुत अच्छा मतलब डांस परफॉर्मेंस कर रखे थे यहाँ पे। हमारे टाइम में मतलब डांस भी बस वही ये नहीं मिला इतना, लेकिन बहुत अच्छा लगा जो आज मतलब इस लेवल पे तुम लोगों ने डांस किया है ना। मतलब थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल गाइडेंस अगर मिल जाती ना आप लोगों को, लाजवाब बा कमाल करते आप सब लोग। तो एक्टिंग अच्छा है किसी को, मतलब ये कल्चरल एक्टिविटी एक्टिंग में किसी को, मैंने सुना यहाँ पे नुक्कड़ नाटक हुआ अभी, थिएटर किया सबने? फिर तो इससे बड़ी बात ही नहीं है कोई। आप लोग थिएटर से अवगत तो हो, बाहर किसी को पूछ लो थिएटर क्या होता है, कुछ भी नहीं भाई, नौटंकी। थिएटर बहुत वास्ट चीज है, बल्कि भारत सरकार NSD पूरे ऑल ओवर एशिया 23 बच्चे जाते हैं पूरे ऑल ओवर एशिया, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े बड़े, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह साहब, ये सारे पढ़े हैं। अभी आपको लगा होगा कि बस ये तो आना था स्टेज पे, अपना कुछ कुछ बोलना था, पटर 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 किया और चले गए। बाहर जाओगे इसकी आपकी बहुत वैल्यू होगी, आपको लोगों को बात करना आएगा। थिएटर सिर्फ ये नहीं सिखा रहा, पर्सनैलिटी, खड़ना, हम कैसे खड़ते हैं, दो खड़ गए, सिखाता है कि कैसे दोनों पैरों पे बैलेंस होके खड़ना है, आपकी बॉडी, आपका बात करने का स्टाइल, डिक्शन, पर्सनैलिटी, ग्रूम कैसे रहना है, ये सब आपको थिएटर सिखाएगा। मैं थिएटर से हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं फिलहाल मास्टर्स कर रहा हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, MA इन थिएटर एंड टेलीविजन। 6 मतलब 1 सेमेस्टर रह गया, उसके बाद मैं मास्टर्स हो जाऊँगा। लेकिन बस ये था कि आप लोग भी अपने अंदर पहचानना, ज़रूरी नहीं कि अभी जोनी भाई ने कहा है कि कंपटीशन बहुत है, तो बहुत है, इसमें भी बहुत है, लेकिन अपने अंदर पहचान। भैया एक सवाल था आपसे। हाँ जी बिल्कुल। कि आपका सबसे अच्छा टीचर या फेवरेट टीचर कौन था? मेरे सारे, कोई एक हो? नहीं, सारों से बिल्कुल जितना मिलना चाहिए सब, सभी टीचर से मिला है, मतलब कोई तो एक। किसी की एक्टिंग करके दिखा सकते हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया एक्टिंग तो जैसे हमारे 2-3 सर थे, एक मंजीत सर थे, है ना, उनका चलने का स्टाइल ही अलग था। मतलब जो यूनिक चीजें होती है वो पकड़ी जाती हैं। तो वो चलते थे, थोड़ा सा कंधे ऊपर होते थे, और जैसे चल रहा है अभी तक राकेश सर, कई बार मतलब मैथ को इतना खौफ था मेरे अंदर दिमाग में, बस मैथ ले लिया, खौफ दिमाग में, ऐसे सो रहा, क्यों बे कॉपी नहीं बनानी है? अबे हाँ तू खड़ा हम भी मतलब तरीके ढूंढ लिए थे हमने कैसे कैसे बचना है। राकेश सर एक्चुअली ना बहुत खो जाते थे अपने उसमें, तो हम लोगों से नॉर्मल क्वेश्चन तो हो नहीं रहे NCERT के, उनके पास चले जाते थे, वो लेके बड़ी बड़ी प्रदीप्स होती थी या वो होती थी ना IIT लेवल के क्वेश्चन, सर ये बता दो, सर उलझ के उसी में ही कर रहे हैं, हम बाहर पीछे वो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। किसी टीचर का टाइम टेबल निकालना होता था तो मतलब ठीक था, जो था बढ़िया था। लेकिन ये सब चीज़ें भी मोमेंट्स बनाती हैं, लेकिन मोमेंट्स कोशिश करना कि गलती में तब्दील ना हो जाए, समझ रहे हो?
मोमेंट्स अच्छे लगते हैं अगर बाद में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन मोमेंट्स कब गलती का रूप ले लें फिर आपको ये लगेगा कि मैंने गलती कर दी, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो मेमोरीज को अच्छी ही रखना बजाय कि वो बाद की मेमोरीज आपकी खराब हो जाए। ठीक है, चलो थैंक यू। कोई डायलॉग या एक्टिंग? चलो पुष्पा 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 पुष्पा। ये कमर्शियल एक्टिंग है, मतलब इसकी भी ठीक है, लेकिन आप सब लोगों अब थिएटर से अवगत हो आप सारे। अब या तो थिएटर का एक डायलॉग सुना सकता हूँ या कोई कविता। डायलॉग 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 डायलॉग। चलो डायलॉग सुना देता हूँ, ठीक है, कविता फिर किसी दिन। भगत सिंह का एक डायलॉग है, गगन तमाम बाजे पीयूष मिश्रा द्वारा लिखित एक नाटक है, हम लोगों ने खेला है, बहुत खेला है। तो भगत सिंह के किरदार का एक डायलॉग है, उसमें वो क्या बताते हैं, मतलब भगत सिंह जो दूरदर्शी कहलाए जाते थे, मतलब विजन बहुत अच्छा था उनका। 23 साल की उम्र में वो इतनी आगे की सोचते थे, तो उनकी सोच कैसी थी, पीयूष मिश्रा के एक डायलॉग में। माइक की जरूरत है या बिना माइक के? माइक की जरूरत है या बिना माइक के? थिएटर वालों को शोभा नहीं देता माइक। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब, ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि आपके जिस्म से टपकी लहू की एक बूंद आने वाली सारी की सारी नस्ल के खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब, और हंसते हंसते उसे फांसी के तख्ते पर लटका देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर काफी नहीं। बिना वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना तो बेवकूफी है, और शायद हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में यही कमी रही। बता दूं कि आज हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरी तो यह है कि आजादी हमें मिलती कैसे है।